प्रोवर्ब्स 10 चैप्टर और 11 चैप्टर पढ़ेंगे। किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स 10 चैप्टर 11 चैप्टर। Introduction, chapter 10. From this chapter to the 5 and 20th are sundry observations of virtues and their contrary vices. First verse से पढ़ेंगे। The Proverbs of Solomon, a wise son maketh a glad father, but a foolish son is the heaviness of his mother. Treasures of wickedness profit nothing, but righteousness delivereth from death. और एक बार पढ़ेंगे सेकेंड वर्स। Treasures of wickedness profit nothing, but righteousness delivereth from death. The Lord will not suffer the soul of the righteous to famish, but he casteth away the substance of the wicked. He becometh poor that dealeth with a slack hand, but the hand of the diligent maketh rich. He that gathereth in summer is a wise son, but he that sleepeth in harvest is a son that causeth shame. Blessings are upon the head of the just, but violence covereth the mouth of the wicked. सेवन वर्स से आगे। द मेमोरी ऑफ द जस्ट इज ब्लेसेड, बट द नेम ऑफ द विकेड शैल रॉट. The wise in heart will receive commandments, but a prating fool shall fall. He that walketh uprightly walketh surely, but he that perverteth his ways shall be known. He that winketh with the eye causeth sorrow, but a prating fool shall fall. The mouth of a righteous man is a well of life, but violence covereth the mouth of the wicked. Hatred stirreth up strifes, but love covereth all sins. In the lips of him that hath understanding wisdom is found, but a rod is for the back of him that is void of understanding. Wise men lay up knowledge, but the mouth of the foolish is near destruction. The rich man's wealth is his strong city, the destruction of the poor is their poverty. The labor of the righteous tendeth to life, the fruit of the wicked to sin. He is in the way of life that keepeth instruction, but he that refuseth reproof erreth. He that hideth hatred with lying lips, and he that uttereth a slander is a fool. Hallelujah. महत्व का वचन है। देखिए 18 वचन। He that hideth hatred with lying lips, and he that uttereth a slander is a fool. In the multitude of words there wanteth not sin, but he that refraineth his lips is wise. The tongue of the just is as choice silver, the heart of the wicked is little worth. The lips of the righteous feed many, but fools die for want of wisdom. But fools die for want of wisdom. The blessing of the Lord it maketh rich, and he addeth no sorrow with it. It is as a sport to a fool to do mischief, but a man of understanding hath wisdom.
The fear of the wicked, it shall come upon him, but the desire of the righteous shall be granted. As the whirlwind passeth, so is the wicked no more, but the righteous in is an everlasting foundation. As vinegar to the teeth, and as smoke to the eyes, so is the sluggard to them that send him. The fear of the Lord prolongeth days, but the years of the wicked shall be shortened. The hope of the righteous shall be gladness, but the expectation of the wicked shall perish. The way of the Lord is strength to the upright, but destruction shall be to the workers of iniquity. The righteous shall never be removed, but the wicked shall not inhabit the earth. The mouth of the just bringeth forth wisdom, but the froward tongue shall be cut out. The lips of the righteous know what is acceptable, but the mouth of the wicked speaketh frowardness. Chapter 11, first verse say, a false balance is abomination to the Lord, but a just weight is his delight. When pride cometh, then cometh shame, but with the lowly is wisdom. The integrity of the upright shall guide them, but the perverseness of transgressors shall destroy them. देखिए चैप्टर 11 का 3 वर्स. The integrity of the upright shall guide them, but the perverseness of transgressors shall destroy them. 4 verse से आगे, riches profit not in the day of wrath, but righteousness delivereth from death. The righteousness of the perfect shall direct his way, but the wicked shall fall by his own wickedness. The righteousness of the upright shall deliver them, but transgressors shall be taken in their own naughtiness. When a wicked man dieth, his expectation shall perish, and the hope of unjust men perisheth. The righteous is delivered out of trouble, and the wicked cometh in his stead. An hypocrite with his mouth destroyeth his neighbor. But through knowledge shall the just be delivered. When it goeth well with the righteous, the city rejoiceth, and when the wicked perish, there is shouting. By the blessing of the upright, the city is exalted, but it is overthrown by the mouth of the wicked. He that is void of wisdom despiseth his neighbor, but a man of understanding holdeth his peace. A tale bearer revealeth secrets, but he that is of a faithful spirit concealeth the matter. Where no counsel is, the people fall, but in the multitude of counselors there is safety. He that is surety for a stranger shall smart for it, and he that hateth suretyship is sure. A gracious woman retaineth honor, and strong men retain riches. The merciful man doeth good to his own soul, but he that is cruel troubleth his own flesh. The wicked worketh a deceitful work, but to him that soweth righteousness shall be a sure reward. As righteousness tendeth to life, so he that pursueth evil pursueth it to his own death. They that are of a froward heart are abomination to the Lord, but such as are upright in their way are his delight. Though hand join in hand, the wicked shall not be unpunished, but the seed of the righteous shall be delivered. As a jewel of gold in a swine's snout, so is a fair woman which is without discretion. The desire of the righteous is only good,
but the expectation of the wicked is wrath. There is that scattereth and yet increaseth, and there is that withholdeth more than is meet, but it tendeth to poverty. The liberal soul shall be made fat, and he that watereth shall be watered also himself. He that withholdeth corn, the people shall curse him, but blessing shall be upon the head of him that selleth it. He that diligently seeketh good procureth favor, but he that seeketh mischief, it shall come unto him. He that trusteth in his riches shall fall, but the righteous shall flourish as a branch. He that troubleth his own house shall inherit the wind, and the fool shall be servant to the wise of heart. The fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. Behold, the righteous shall be recompensed in the earth, much more the wicked and the sinner. नीति वचन 10 अध्याय 11 अध्याय हम पढ़ेंगे हिंदी BSI बाइबल में से सुलेमान के नीति वचन 10 अध्याय पहले वचन से। सुलेमान के नीति वचन। बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है। दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता। यहाँ पर ध्यान दीजिए, दूसरा वचन क्या कहता है? दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता है, परंतु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। धर्मी को यहोवा भूख को मरने नहीं देता, परंतु दुष्टों की अभिलाषा वह पूरी होने नहीं देता। जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। जो बेटा धूप काल में बटोरता है वह बुद्धि से काम करने वाला है, परंतु जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वह लज्जा का कारण होता है। धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं, परंतु दुष्टों का नाम मिट जाता है। जो बुद्धिमान है वह आज्ञाओं को स्वीकार करता है, परंतु जो बकवादी और मूढ़ है वह पछाड़ खाता है। जो खराई से चलता है वह निडर चलता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है उसकी चाल प्रकट हो जाती है। जो नैन से सैन करता है उससे औरों को दुख मिलता है, और जो बकवादी और मूढ़ है वह पछाड़ खाता है। धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढांप जाते हैं। बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, ध्यान रखिए, बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढांप जाते हैं। समझ वालों के वचनों में बुद्धि पाई जाती है, परंतु निर्बुद्धि की पीठ के लिए कोड़ा है। बुद्धिमान लोग ज्ञान को रख छोड़ते हैं, परंतु मूढ़ के बोलने से विनाश निकट आता है। धनी का धन उसका दृढ़ नगर है, परंतु कंगाल की निर्धनता उसके विनाश का कारण है। देखो 15 वचन क्या है? धनी का धन उसका दृढ़ नगर है। धनी का धन उसका
दृढ़ नगर है। और हमने यहाँ पर क्या देखा, 2 वचन में, दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता। 15 वचन में लिखा है धनी का धन उसका दृढ़ नगर है। और 2 वचन में क्या लिखा है, दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता। समझ पाए तो समझिए, धन क्यों लोग इकट्ठा करते हैं। ये 2 वचन से आपको एंड रिजल्ट भी दिखाई देता है कि ठीक है, उनका वो दृढ़ गढ़ है, दृढ़ नगर है, लेकिन उसका लाभ नहीं है, कुछ भी लाभ नहीं है। परंतु कंगाल की निर्धनता उसके विनाश का कारण है। परंतु कंगाल की निर्धनता, तो निर्धनता ये नाश करता है। निर्धनता ये एक शब्द है जो विनाश का कारण बनता है। कंगाल की निर्धनता, कंगाल की निर्धनता विनाश का कारण बनता है, परंतु कंगाल की निर्धनता उसके विनाश का कारण है। धर्मी का परिश्रम जीवन के लिए होता है। अब यहाँ पर फिर से एक बार संपत्ति धन के विषय में है। यहाँ पर क्या दिया है, ठीक है, लोग धन कमाते हैं, धन जमा करते हैं, धन को पकड़े रखते हैं, धन को बढ़ाने के चक्कर में लगे रहते हैं, धन 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 सब कुछ वो पूरा जी जान लगा के धन को बटोरने के पीछे पड़े रहते हैं। क्योंकि ये वचन कहता है कि धन धनी का दृढ़ नगर बनता है। दृढ़ नगर मतलब उसको कोई तोड़ नहीं सकता है, उसको कोई गिरा नहीं सकता है, उसका कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता है। वो धन को ले लेके काम चलाता जाएगा, ऐसा है। और 2 वचन में बोला है लेकिन अगर वो दुष्टों का है तो वो कुछ लाभ का नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वो धर्मियों का है तो उसमें से जीवन मिलता है। आमीन। 16 वचन, धर्मी का परिश्रम जीवन के लिए होता है, परंतु दुष्ट के लाभ से पाप होता है। दुष्ट के पास जो भी रखा होगा, धन संपत्ति ऐशो आराम सब कुछ जो है वो पाप में लगा देता है, ठीक है। अब धन का फर्क समझ में आया। दुनिया के अंदर सभी धनी है, सब जन है, जो भी है वो देखता है, नहीं सिर्फ रोटी पानी के लिए नहीं जाता है, वो और भी बातों के लिए जाता है। घर के चीज़ों को खरीदना है, घर लेना है, गाड़ियाँ लेनी है, परिवार चलाना है, बच्चों की पढ़ाई करना है, बहुत कुछ पैसा उनके काम करने के लिए उपलब्ध करने के पीछे वो दौड़ते रहते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। लेकिन अगर वो धर्मी नहीं है तो फिर वो उसको एंड रिजल्ट 2 वचन है, उससे कुछ लाभ नहीं होगा। वो सब कुछ अपने सिक्योरिटी के लिए लेके रखेगा, सब कुछ करके रखेगा, लेकिन 2 वचन उसको आड़े आ जाएगा, उसको लाभ कुछ नहीं होगा उसका। लेकिन धर्मी जब धन कमाएगा, धर्मी जब धन संपत्ति इकट्ठा करेगा, धर्मी जब एस्टेट प्रॉपर्टी गाड़ियाँ कुछ भी लेगा तो वह जीवन में परिवर्तित होगा। ये फ़र्क है, ठीक है। और दुष्ट जब ये सब कुछ करता है तो वह पाप में बदल देता है सब कुछ, ठीक है। लेकिन धर्मी जीवन में बदल देता है। ये फ़र्क है धन संपत्ति धर्मियों के पास होना और धन संपत्ति कोई भी इंसान के पास, दूसरे इंसानों के पास होना, ये फ़र्क है। उनसे कुछ लाभ नहीं होता है, धर्मियों से जीवन निकलता है, ठीक है। 16 वचन देखिए, धर्मी का परिश्रम जीवन के लिए होता है, परंतु दुष्ट के लाभ से पाप होता है। और यहाँ ऊपर लिखा है कंगाल की निर्धनता, 15 वचन, कंगाल की निर्धनता। इसके लिए हमको कंगाल नहीं रहना है, हम नहीं है कंगाल। यीशु मसीह ने हमको कंगाल होने से छुड़ा लिया है, हम धनी है। क्यों परमेश्वर ने हमको धनी बनाया? क्योंकि धन हमारे अंदर का हमें बचाता है, दृढ़ नगर बनता है, हमको नाश होने से बचा लेता है। अगर आप बोलेंगे बार बार, अगर ये शब्द को आप इस्तेमाल करेंगे, मैं तो कंगाल हूँ, मेरे पास तो 1 फुटी कौड़ी भी नहीं है, मैं तो कंगाल हूँ, मैं तो निर्धनता में हूँ, अगर आप ऐसा बोलते रहेंगे तो विनाश आपको पकड़ लेगा।
क्योंकि आप विनाश को इनवाइट करते हैं ऐसा बोल के। ठीक है, तो हम मसीह में होने के बाद यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल बना, यीशु मसीह हमारे खातिर निर्धन बना। ओके, और हमारे लिए उसने वो कंगाल का श्राप ले लिया, तो उसके साथ साथ उसने हमको विनाश होने से बचा लिया। अब हम धनी है, यीशु मसीह में हम धनी है। अब विनाश और हमारा कोई संबंध नहीं है। विनाश किसके साथ रहता है? कंगाल की निर्धनता के साथ रहता है। इसके लिए लोग आपको कंगाल की निर्धनता बनाने के चक्कर में पड़े रहते हैं, ताकि आपको वो विनाश करने वाला पकड़ ले। ओके, वो प्रिंसिपल है, वो लॉ है। जो निर्धन कंगाल की निर्धनता में जी रहा होता है, तो उसको विनाश ऑटोमेटिक, वो एक रूल है यूनिवर्स के अंदर, स्पिरिचुअल रूल है, ऑटोमेटिक वो विनाश उसको पकड़ लेता है। ठीक है, वो धनियों को नहीं पकड़ता है, लेकिन वो कंगाल की निर्धनता जो होती है उनको पकड़ता है वो। ठीक है, ये स्पिरिचुअल रूल है। ये धर्मी का परिश्रम जीवन के लिए होता है, परंतु दुष्ट के लाभ से पाप होता है। 17 वचन से आगे, जो शिक्षा पर चलता वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता वह भटकता है। जो बैर को छिपा रखता है वह झूठ बोलता है, और जो झूठी निंदा फैलाता है वह मूर्ख है। देखो, यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है। बैर बैर बैर, जितनी बार आपने 10 और 11 अध्याय में पढ़ा होगा, 10 और 11, 10 अध्याय में अभी जितना पढ़ा है बैर, आप बच के रहिए। ये स्पिरिट है, बैर ये स्पिरिट है। ओके, जिसके अंदर बैर छिपके बैठने वाला आत्मा है, वो छिपके बैठता है। हेट्रेड, इंग्लिश में उसको हेट्रेड स्पिरिट कहा है। ओके, तो वो छुप के बैठता है, वो प्रकट नहीं होता है, और वही आपसे झूठ बुलवाता है, वही आपसे निंदा बुलवाता है, वही आपको चलाता है। ओके, बैर रगड़े झगड़े के मौसम वो लेके आता है। ये स्पिरिट है, ये स्पिरिट जिसके अंदर ये स्पिरिट रहेगा छिपा हुआ, वो आपको हमेशा, याकूब की पत्री 4 अध्याय में पढ़िए, वो हमेशा आपको लड़ता झगड़ता रगड़ता ऐसे ही मिलेगा। हमेशा कुछ ना कुछ टकराता ही रहता है, कुछ ना कुछ विपत्तियों का वो यहाँ वहाँ से सामना ही करते रहता है, क्योंकि उसके अंदर ये स्पिरिट है छुपा हुआ। उसके ये लक्षण है कि वो झूठ बोलता है। ओके, झूठ बोलता है तो उसके अंदर का ये स्पिरिट है, बैर का आत्मा है उसके अंदर, और वो आत्मा छुपा के रखा हुआ है, छुप के बैठा हुआ है। इसके लिए उसका फल निकलता है झूठ बोलना। ठीक है, और मूर्खता के तो फल आपको मालूम ही पड़ रहे हैं कि झूठी निंदा फैला रहा है ना। और जो झूठी निंदा फैलाता है वह मूर्ख है। जहाँ बहुत बातें होती है वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता वह बुद्धि से काम करता है। मुझे ये बहुत पसंद है। इवन अनबिलीवर्स भी इसमें बुद्धिमान दिखाई देते हैं जब वह अपने मुंह को बंद रखते हैं। ओके, मैंने बहुत जनों को ऐसा देखा है जो अनबिलीवर्स है, जिनको ये गुण उनके अंदर बिठाया गया है कि तुम अपने मुंह को बंद रखा करो, कुछ बात मत करो। तो अब तो वो लोग अपने मुंह के अंदर कुछ मंत्र तंत्र श्राप बोल रहे होंगे, इसके लिए वो मुंह बंद रखते हैं। लेकिन कुछ मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो बिलीवर्स नहीं है, जो अन्य जातियों में से है, लेकिन वो इतने सेंसिटिव होते हैं अपने मुंह के शब्द के बारे में कि बहुत नाप तौल कर वो अपने मुंह को शब्द में लेकर आते हैं। नहीं तो फिर उनका मुंह कभी भी देखो ना, आप कभी भी देखो, कितना भी प्रेशर डालो उनके ऊपर, वो मुंह नहीं खोलते हैं, मुंह को बंद रखते हैं। और सच में मुझे वैसे लोग बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ना कि क्या कहते, बहुत ज़्यादा मुझे प्रसन्न करते हैं, मुझे बहुत प्लेजर देते हैं वो ऐसा करके, क्योंकि ये एक कारण है कि वो अगर बुद्धिमान नहीं है तो भी वो बुद्धिमान दिखाई देते हैं। ओके, ठीक है, हम देखेंगे इसको 19 वचन को। जहाँ बहुत बातें होती है वहाँ अपराध भी होता है। बहुत प्यारा अनुभव है ये।
बहुत प्यारा अनुभव है। मुंह को बंद रखना बहुत प्यारा अनुभव है, बहुत डेलिकेट, बहुत नाजुक अवस्था होती है। इस एरिया ऑफ लाइफ की बहुत नाजुक अवस्था है जो अपने मुंह को बंद रखता है। बहुत ब्यूटीफुल कैरेक्टर है ये, जो अपने मुंह को बंद रखता है। जहाँ बहुत बातें होती है वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता वह बुद्धि से काम करता है। धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी है, परंतु दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है। धर्मी जब बोलता है तो फायदे बहुत ज़्यादा है, तो वो वचन के कारण है। अगर वचन को छोड़कर हम बकवादी बन जाएंगे तो वो हमारे लाभ का नहीं है, वो मूर्खता में बदल देगा हमको। तो सोचिए मत मसीही लोग हैं इसीलिए अच्छे मुंह से ही रहेंगे, नहीं, हमको भी उसके अंदर चौकसी रखना है। हम धर्मी हैं तो वचन ज़्यादा से ज़्यादा हमको वचनों को काम में लाना है। देखो क्या लिखा है, धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है। पालन पोषण सिर्फ रोटी से नहीं होता है। यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक शब्द से धर्मी जन जीवित रहेगा। विश्वास के द्वारा। विश्वास कैसे आता है? सुनने के द्वारा। सुनना क्या? वचनों को सुनने से। तो वचनों को कौन बोलेगा? धर्मी लोग बोलते हैं। ओके, तो ये प्रकार से प्रभु यीशु ने भी प्रूव किया, केवल रोटी से मनुष्य जीवित नहीं रहेगा, परंतु परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन से। और फिर ये भी वचन है कि धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। और विश्वास कैसे आता है? सुनने से, सुनना वचन से। और कौन सुनाएगा वचन? धर्मी लोग सुनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पालन पोषण होते हैं। पालन पोषण सिर्फ कपड़ा पहनना और घर दे देना और रहने का अच्छे से सुविधा कर देना और खाने पीने की चीज़ें देना, ये बाहरी तौर का पालन पोषण से ही नहीं होता है, वचनों से होता है। धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम आशीष के शब्द बोलते हैं, हम जो रिलीज करते हैं प्रार्थना में से सबके ऊपर, वही जाकर उनका पालन पोषण में इस्तेमाल हो जाता है। परंतु मूढ़ लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। क्यों मूढ़ लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं? क्योंकि वो अपने मुंह की बात ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो यूनिवर्स के अंदर के कड़वाहट के रियाम में जो स्पिरिट्स होते हैं, जो फोर्सेस होते हैं, उनके मुंह के शब्दों के कारण बहुत ज़्यादा उनके साथ संघर्ष करती है। और यही उनके शब्द अगर वह सही ढंग से इस्तेमाल करे, तो अगर वह ये अधर्मी है, अगर वो अनबिलीवर है, फिर भी वो अपने आप को सही ढंग से रख पाता है। लेकिन अगर उसके शब्द सही नहीं रहेंगे तो वह निर्बुद्धि होता है और वह यूनिवर्स के अंदर की शक्तियों को खींच लेता है। जो डिस्ट्रक्टिव स्पिरिट्स रहते हैं, जो डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस, नाश करने वाली, ऐसे हानि करने वाली शक्तियाँ, जोर होती है, वो शक्तियों को, वो जोर को वो इकट्ठा करते रहता है निर्बुद्धि होने के कारण। क्योंकि अपने मुंह के शब्दों का वो इस्तेमाल उसी तरह से निर्बुद्धि की तरह करते हैं। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। मूर्ख तो महापाप करना हंसी की बात जान पड़ती है। मूर्ख को तो महापाप करना हंसी की बात जान पड़ती है, परंतु समझ वाले पुरुष में बुद्धि रहती है। हालेलुया। परंतु समझ वाले पुरुष में बुद्धि रहती है। दुष्ट जन जिस विपत्ति से डरता है वह उस पर आ पड़ती है, परंतु धर्मियों की लालसा पूरी होती है। देखिए, लालसा से दूर भागो ऐसा नया नियम सिखाता है, लेकिन धर्मियों के पास जो लालसाएं है, परमेश्वर कहता है कि वो पूरी होती है। क्यों पूरी होती है? क्योंकि धर्मी उसी को कहा जाता है जो वचन के दायरे में बैठकर अपना जीवन जी रहा होता है और धार्मिकता वचन ही में है। तो ये लालसाएं जब उत्पन्न होती है तो वो लालसाएं वचन के दायरे के अंदर से निकलती है। इसकी वजह से वो हमको पूरा हो जाना आवश्यक हो जाता है। परमेश्वर उसे पूरा करता है। और वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु के दायरे में जो भी है वो सब वचन
के दायरे में आ जाता है। वचन के दायरे में आ गया तो वचन की लालसा उत्पन्न होती है। वचन के अंदर से निकली हुई लालसा आ चुकी है तो वो जरूर परमेश्वर पूरा करता है। आमीन। बवंडर निकल जाते हैं, जाते ही दुष्ट जन लोप हो जाता है, परंतु धर्मी सदा लो स्थिर है। हालेलुया। देखो क्या लिखा है, बवंडर निकल जाते ही दुष्ट जन लोप हो जाता है, दुष्ट जन लोप हो जाता है, परंतु धर्मी सदा लो स्थिर है। जैसे दांत को सिरका, और ये क्यों धर्मी सदा स्थिर रह जाता है? क्योंकि वचन उसको पालन पोषण कर रहा होता है, इसके वजह से वह स्थिर बना रहता है। चाहे कैसा भी समय रहे, पार होकर वो उसमें स्थिर होकर आ जाता है। ठीक है। 26 वचन, जैसे दांत को सिरका और आंख को धुआं, वैसे आलसी उनको लगता है जो उसको कहीं भेजते हैं। 26 वचन को और एक बार पढ़ेंगे। जैसे दांत को सिरका और आंख को धुआं, वैसे आलसी उनको लगता है जो उसको कहीं भेजते हैं। यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। देखो, यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है। लोग बोलते हैं क्या फ़ायदा है इतना सब जीने का, क्या फ़ायदा है इतना सब मेहनत करने का, बुजुर्ग लोगों की सेवा करने का, इतना क्या फ़ायदा है। लेकिन ये हमको क्यों मिलता है, ऐसा आयु क्यों बढ़कर मिलता है? क्योंकि हमको विरासत में दे दिया परमेश्वर ने, यहोवा का भय हमारे अंदर है। ये कारण है कि हमारे आयु को भी हमको यहोवा की ओर से मिला है। यहोवा की ओर से मिलने वाला सब कुछ हमारे भलाई और हमारे अच्छाई के लिए है। आमीन। लेकिन दुष्टों को वो व्यर्थ लगता है, और परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है, क्योंकि उनकी दुष्टता उनको मार डालती है। ओके, क्योंकि उनके मन की कड़वाहट, रगड़े झगड़े उनके अंदर से बखेड़े बना बनाकर उनको दर्द में डुबा देती है। यही कारण है कि फिर वो अंत हो जाता है उनका बहुत जल्दी। 28 वचन से आगे, धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है, परंतु दुष्टों की आशा टूट जाती है। यहोवा खरे मनुष्य का गढ़ ठहरता है, परंतु अनर्थकारियों का विनाश होता है। धर्मी सदा अटल रहेगा, परंतु दुष्ट पृथ्वी पर बसने न पाएंगे। देखो कितना कुछ दिया है। धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है। हाँ, हम क्यों आशा रखने में आनंद कर सकते हैं? क्योंकि धर्मियों का जगह बाउंड्री क्या है? वचन। जो भी वचन के बाउंड्री के अंदर है, जी रहा है, और फिर उस वचन उसके अंदर आशा उत्पन्न कर रही है, तो उसको आनंद है। लेकिन अगर दुष्ट अगर आशा करने लगता है तो उसको डर रहता है, शायद से मेरा ये आशा टूट जाएगा, शायद से मैं फेल हो जाऊंगा, शायद से मुझे अस्वीकार किया जाएगा, शायद से मुझे इनकार किया जाएगा। उसको हर प्रकार के नेगेटिवनेस से वो भरा हुआ रहता है, और वही फोर्स उसके आशा का टूटने का कारण बन जाता है। ओके। यहोवा खरे मनुष्य का गढ़ ठहरता है, परंतु अनर्थकारियों का विनाश होता है। देखो, यहोवा किसके साइड से है? अधर्मियों के साइड से नहीं है, पापियों के साइड से नहीं है। ओके, यहोवा खरे मनुष्य का साइड लेता है। वह खरे मनुष्य को गढ़ ठहरता है। गढ़ ठहरना मतलब क्या है? खरा मनुष्य उसके अंदर छुप के बैठ जाता है, उसका छुपने का स्थान गढ़ यहोवा बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। परंतु अनर्थकारियों का विनाश हो जाता है। जो भी आपको समझ में आता है, समझ लीजिए, धर्मी होना, माय गॉड, हेवन ऑन द अर्थ, स्वर्ग का आनंद है। ओके, स्वर्ग का आनंद है यहोवा के साथ। धर्मी होना स्वर्ग का आनंद है। जल्दी से आप अगर धर्मी नहीं बने हैं अभी तक, यानी आपने यीशु मसीह को प्रभु कहकर उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आपने डुबकी लगाकर, पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा नहीं लिया है, तो आपने करना बेहद ज़रूरी है। वो रास्ता है धर्मी बनने का, शुरुआत है वो। तो
तो वहाँ से आपकी शुरुआत होगी। तो बहुत कुछ आपको है रखा हुआ, जो इसके बाहर आप रह रहे हैं तो आपके लिए नेगेटिव है सब, लेकिन धर्मी होकर आप धर्मियों के बीच में रहेंगे, आपके लिए बहुत कुछ है। धर्मी सदा अटल रहेगा, हालेलुया। परंतु दुष्ट पृथ्वी पर बसने न पाएंगे। धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है। देखो, मैं हर एक वचन को लेके बात कर रही हूँ, तो ये बुद्धि टपक रही है। पर उलट फेर की बात कहने वाले की जीभ काटी जाएगी। उलट फेर नहीं कहना है और जीभ काटी जाएगी। दैट इज, आपका शब्द ठहरेगा नहीं, गिर जाएगा। धर्मी ग्रहण योग्य बात समझकर बोलता है, परंतु देखो क्या लिखा है, धर्मी ग्रहण योग्य बात समझकर बोलता है। आप ग्रहण करने के लिए लायक होगा, आपके लिए लायक बातें हैं, जायज़ बातें हैं, वही मैं आपको बोल रही हूँ। धर्मी ग्रहण योग्य बात समझ कर बोलता है, क्योंकि धर्मी हूँ मैं, इसीलिए मैं ये बोल रही हूँ। ओके, क्योंकि वचन मेरी बाउंड्री है, इसके लिए मैं आपको जो सच में आपको योग्य ऐसा मूल्य दे सकता है, आपको एक्सेप्टेंस दे सकता है, ऐसा समझ वाला बात मैं आपके साथ कर रही हूँ। ओके, परंतु दुष्टों के मुंह से उलट फेर की बातें निकलती है। हम 11 अध्याय को पढ़ेंगे। नीति वचन 11 अध्याय पहले वचन से। छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। जब अभिमान होता तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। 3 वचन आगे। सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं, परंतु विश्वासघाती अपने कपट से नष्ट होते हैं। कोप के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं होता, परंतु धर्म मृत्यु से भी बचाता है। देखो क्या लिखा है, 4था वचन। कोप के दिन यानी परमेश्वर का क्रोध का दिन आने वाला है। इसके लिए हमने डुबकी लगाकर पानी में बपतिस्मा लिया है, क्योंकि ये एक दिन आने वाला है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह में नहीं रहेंगे तो हमारा धन भी कुछ काम का नहीं रहेगा, हम मृत्यु से बचाए नहीं जाएंगे। ठीक है, तो कोप के दिन धन से तो यानी सब लोग आज के दिन में देखेंगे तो धन ही उनका स्वामी है, और वो यही देखते हैं कि धन इकट्ठा कहाँ से करे, कैसे धोखाधड़ी से या ईमानदारी से या बहुत मेहनत से, कौन से रास्ते से धन, बस धन धन धन। ओके, तो ये आपको कोप के दिन फायदा नहीं कराएगा, परंतु धर्म मृत्यु से भी बचाता है। वो आपको बाकी सब कुछ का फायदा तो देता ही देता है और आपको मृत्यु से भी बचाएगा। तो धर्म बहुत ज़्यादा मायने रखता है, आपको ध्यान रखना है। प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता हमको परमेश्वर के धार्मिकता में लाता है। ठीक है, खरे मनुष्य का मार्ग धर्म के कारण सीधा होता है। हाँ देखो, खरे मनुष्य का मार्ग धर्म के कारण सीधा होता है, परंतु दुष्ट अपनी दुष्टता के कारण गिर जाता है। सीधे लोगों का बचाव उनके धर्म के कारण होता है। कोई ताकत नहीं है सीधे लोगों की, कोई अक्लबाजी नहीं है सीधे लोगों की। सीधे लोगों का एक ही ऐसे कुछ होगा कारण, तो उनका रास्ता जो परमेश्वर के वचन के दायरे के अंदर है, बस वो उनका कारण है। ठीक है, सीधे लोगों का बचाव उनके धर्म के कारण होता है, परंतु विश्वासघाती लोग अपनी ही दुष्टता में फंसते हैं। जब दुष्ट मरता तब उसकी आशा टूट जाती है और अधर्मी की आशा व्यर्थ होती है। धर्मी विपत्ति से छूट जाता है, परंतु दुष्ट उसी विपत्ति में पड़ जाता है। भक्तिहीन जन अपने पड़ोसी को अपने मुंह की बात से बिगाड़ता है, परंतु धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचते हैं। जब धर्मियों का कल्याण होता है तब नगर के लोग प्रसन्न होते हैं, परंतु जब दुष्ट नष्ट होते तब जय जयकार होता है। अब आप देखते होंगे ना, अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज को
तो आपने देखा है कि वहाँ पे वो शहर, जालंधर शहर, पंजाब का राज्य, जो किस तरह से लोग प्रसन्न है, कैसे अलग अलग राज्यों में से लोग वहाँ पर जा रहे हैं। तो धर्मियों का कल्याण, यानी उनका कल्याण हुआ है। ओके, ANM मिनिस्ट्री में जो अंकुर नरूला जी है, उनकी फैमिली है, उनका कल्याण हुआ है परमेश्वर के द्वारा। अब उनके कल्याण होने के कारण अब पूरा नगर उनके साथ आनंद कर रहा है ना। तो इतना बड़ा असर है धर्मियों के कल्याण होने का। अगर कोई धार्मिक कल्याण हो जाता है, उसका धर्मी का कल्याण हो जाता है, तो उसके नगर में सब कुछ प्रसन्नता में बदल जाता है, सबको सहायता होने लगती है, सबका समय बदलने लगता है, सब कुछ इकट्ठे, उसका सब माहौल एकदम अलग होने लगता है, उजियाले से भरने लगता है, ठीक है, प्रसन्नता से भरने लगता है। तो इसके लिए धर्मी होना बेहद ज़रूरी है। पानी में डुबकी लगाकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेकर धर्मियों का रास्ता शुरू हो जाता है। प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हो इस प्रकार से। परंतु जब दुष्ट नष्ट होते तब जय जयकार होता है। देखो, बीमारियां निकल जाती है, जादू टोने निकल जाते हैं, सब कुछ निकल जाते हैं, तो हम कितना जय जयकार करते हैं। सब हम आवाज़ें मार मार के, चीखे लगा लगा के हम जय जय घोष के नारे लगाते हैं और बड़ा आनंद करते, बड़ा उत्सव मनाते। अपने घर के अंदर बड़े ताजगी के साथ हम अपने जय का उत्सव मना रहे होते हैं, है ना। तो ये तरह से है, जब दुष्ट नष्ट होता है तब जय जयकार होता है। सीधे लोगों के आशीर्वाद से ANM मिनिस्ट्री देखिए आप, अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज को, प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी की मिनिस्ट्री को आप लाइव उनका जो डिलीवरेंस होता है, जो उनके यहाँ गवाहियाँ आती है, ANM मिनिस्ट्री में गवाहियों को दिखाया जाता है और प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के मिनिस्ट्री में लाइव लोगों को उठता हुआ दिखाया जाता है। वो देखकर मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। लाइव चमत्कारों को देखकर जो बदलाव हो जाता है हमारे अंदर, आत्मा के भागों में, लाजवाब है वो। इसके लिए मुझे वो लाइव देखना पसंद है। ओके, लाजवाब। मैं TB जोशुआ, प्रॉफिट TB जोशुआ लाइव डिलीवरेंस देखती हूँ। छुटकारे होता है, विश्वास बढ़ता है, हमारे अंदर के सारी कमज़ोर अवस्था निकल जाती है, अज्ञानता निकल जाती है। ओके, भरपूरी आ जाती है, भरपूरी आ जाती है। तो आप ये दोनों मिनिस्ट्रीज़ को आप देख सकते हैं। तो आपको गवाहियों के लिए अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज़ ज़बरदस्त गवाहियों को लाते हैं, वो आप देख सकते हैं। और लाइव देखना है तो फिर प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी लाइव इंसानों को ऐसे अवस्था में आते हैं कि बस कोई हालात हवाल कुछ नहीं है और वो उनको उठा देते हैं। ओके, ये लाइव देखना भी ज़रूरी है। ये कारण है कि हमारा इस जगह में ऐसे प्रकार से जब चेंजेस हो जाता है तो हम जय जयकार करने लगते हैं। ओके, हम वो समय को आनंद में बदल देते हैं, उस समय में हम प्रसन्न हो जाते हैं, सब कुछ हमारा फैमिली, सब कुछ हमारा जय जयकार करने लगता है। ये फ़र्क है, धर्मियों का भाग है ये। ओके, तो आपको धर्मियों के अंदर आप नहीं आएंगे तो आपके लिए ये भाग वंचित है और आप क्या हो सकते हैं, फिर नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, और आप नष्ट हो जाते हैं जब ऐसे बीमारियां निकल जाती है, जब सारे चीज़ें सारा चीज़ आपका ख़त्म हो जाता है तो आपको आनंद करने का कोई रास्ता नहीं बचता है। ठीक है, आपका रास्ता ख़त्म हो जाता है वहाँ पर। और यही एक आपको समझ में आना चाहिए, आप धर्मियों के बाहर रहकर आपको कुछ भी नहीं है, फालतू का टाइम वेस्टिंग है आप लोगों का। ओके, ध्यान लीजिए इस बात को। सीधे लोगों के आशीर्वाद से नगर की बढ़ती होती है, परंतु दुष्टों के मुँह की बात से वह ढाया जाता है। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह निर्बुद्धि है, परंतु समझदार पुरुष चुपचाप रहता है। देखो यहाँ क्या लिखा है, जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह निर्बुद्धि है। हमारे
हमारे संगति में शायद से कोई भी हो, चाहे वो उद्धार पाया हुआ धर्मी जन हो या अधर्मी जन हो, कोई भी हो, हम किसी को तुच्छ नहीं जानते हैं, किसी को भी हम नाम नहीं रखते हैं। हम सबको एक सरलता का उपदेश देते हैं, सीधाई का वचन देते हैं, क्योंकि उससे उनका क्या हो जाता है, पालन पोषण होता है। 10 अध्याय के 21 वचन में लिखा है, धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है। ओके, और देखो क्या लिखा है 20 वचन में, धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी है। समझ में आया? तो हम जो आपको सिखाते हैं, बोलते हैं, ये धर्मियों के दायरे में, वचन के दायरे में बैठकर हम आपको बता रहे हैं, तो ये आपको सुना रहे हैं। अगर ये सारा चीज़ है तो इसमें हम कोई भी प्रकार से असमझदारी में नहीं है। ये हमारी समझदारी का फल आपको मिल रहा है, आपका पालन पोषण हो रहा है। ओके, आपको तुच्छ जानते हुए ये नहीं कहा जा रहा है, ये आपका पालन पोषण एक अच्छे ताया हुआ चांदी जो होता है उसके समान, उत्तम चांदी के समान हमारा सिखाना है। ओके, तो उसके मूल्य है, इस बात में हम आपको बोल रहे हैं। लेकिन बाकी कुछ और बातें हैं तो हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे, उसमें हम चुपचाप रहते हैं, परंतु समझदार पुरुष चुपचाप रहता है। जो लुतराई करता फिरता वह भेद प्रकट करता है, परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ती है। देखो, बुद्धि की युक्ति नहीं वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ती है। ओके, अगर मैं आपसे ये बातें ना कहूँ तो आपके लिए वो विपत्ति में पड़ने का कारण बन जाएगा, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। आपको बचने का मार्ग हमारे बोलने से मिलता है। ठीक है, जो परदेशी का उत्तरदायी होता है वह बड़ा दुख उठाता है, परंतु जो जमानत लेने से घृणा करता वह निडर रहता है। हम किसी के भी साइड से नहीं होते हैं, कहीं पर भी नहीं। हम हर समय वही देखते हैं कि परमेश्वर का वचन धार्मिकता है और वचन के दायरे में हम हैं, और इसके लिए हम और कोई सहारा लेने का ज़रूरत नहीं है, हमको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, परंतु जो जमानत लेने से घृणा करता वह निडर रहता है। देखो 15 वचन, जो परदेशी का उत्तरदायी होता है वह बड़ा दुख उठाता है, परंतु जो जमानत लेने से घृणा करता वह निडर रहता है। अनुग्रह करने वाली स्त्री प्रतिष्ठा नहीं खोती है। देखो, अनुग्रह करने वाली स्त्री ओके, प्रतिष्ठा नहीं खोती है। याद रखिए ये वचन को। और उग्र लोग धन को नहीं खोते। कृपालु मनुष्य अपना ही भला करता है, परंतु जो क्रूर है वह अपनी ही देह को दुख देता है। कृपालु मनुष्य, अब इसमें कोई ऐसा नहीं लिखा है कि आप धर्मी है या अधर्मी है, ऐसा नहीं लिखा है। यहाँ पे कैरेक्टर दिया है, एक एटीट्यूड दिया है। अनुग्रह करने वाली स्त्री प्रतिष्ठा नहीं खोती है और उग्र लोग धन को नहीं खोते हैं। कृपालु मनुष्य अपना ही भला करता है, ठीक है, परंतु जो क्रूर है वह अपनी ही देह को दुख देता है। ठीक है, अगर क्रूरता आप इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने ही देह को दुख दे रहे हैं। दुष्ट मिथ्या कमाई कमाता है, परंतु जो धर्म का बीज बोता उसको निश्चय फल मिलता है। अब मैंने आज जो सिखाया आपको, ये क्या हो गया? बीज हो गया। मैंने तो बो दिया, अब इसका वचन बैकिंग करता है, वो कहता है वो निश्चय अभी फल मिलता है, निश्चय है, वो खत्म, फाइनल आंसर हमको मिल गया। इसके लिए हम क्या बोलते हैं? आखिरी शब्द यहोवा का है। अब चाहे जो बोलना है किसी को बोल सकते हैं, लेकिन इसका फल तो मिलना ही मिलना है, उसको निश्चय फल मिलता है। जो धर्म में दृढ़ रहता वह जीवन पाता है। अगर हम ये बातें बोलना छोड़ दें तो हम दृढ़ नहीं हैं।
ओके, अगर हम बोल रहे हैं आपको ये सारी सच बातें, तो हम दृढ़ में रह रहे हैं, दृढ़ता में जी रहे हैं और हम जीवन पाएंगे। अगर हम ऐसा नहीं बोलेंगे, हम ये सारी बातें आपको नहीं बताएंगे, नहीं बोलेंगे, तो हमारे अंदर जीवन नहीं है। ओके, तो इसकी वजह से हमको भी अपना बेनिफिट आता है जब हम आप लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। जो धर्म में दृढ़ रहता वह जीवन पाता है, परंतु जो बुराई का पीछा करता वह मृत्यु का कौर हो जाता है। जो मन के टेढ़े हैं उनसे यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह खरी चाल वालों से प्रसन्न रहता है। आप इसमें कुर्नेलियुस को याद कर सकते हैं। कुर्नेलियुस जो यहूदियों के चाल रीतियों में जीता था, वह सच में यहूदी नहीं था, लेकिन वो उनके चाल रीतियों में चलता था और उसकी चाल सही थी, अच्छी थी। तो परमेश्वर ने स्वर्ग दूतों को अरेंज करके पतरस जो यीशु का चेला था उसको दौड़ाया, उसके घर में बुलाकर लेकर गया और फिर उसके द्वारा वो पूरा कुर्नेलियुस के साथ उसके संगति में सारा उसका घराना उद्धार में आ गया। ऐसा परमेश्वर खरी चाल वालों से परमेश्वर प्रसन्न रहता है और परमेश्वर उनका कुछ चेंजेस ऐसा जबरदस्त लगा देता है सेटिंग कि सब कुछ उनका सुधार में आ जाता है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है, चाहे आप धर्मी हो या अधर्मी, कैरेक्टर भी काम करता है। अनुग्रह करने वाली स्त्री, कृपालु मनुष्य, है ना, और अभी यहाँ पे दिया है खरी चाल चलने वाला, है ना। तो इस तरह से आपका एटीट्यूड, आपका जो आपके गुण है वो भी काम करते हैं, वो भी व्यर्थ नहीं है। ओके, उसके अंदर से भी कुछ निकालता है परमेश्वर, उसके काम में लाता है। ठीक है, 21 वचन पढ़ेंगे। मैं दृढ़ता के साथ कहता हूँ, बुरा मनुष्य निर्दोष न ठहरेगा, परंतु धर्मी का वंश बचाया जाएगा। देखिए, अब किसका वंश बचाया जाएगा? लोग बोलते हैं बेटा होना चाहिए, बेटा होगा तो हमारा वंश बचेगा। वंश ऐसे नहीं रहता है। धर्मी जो होगा वही सिर्फ आगे आखिरी समय तक रहेगा। अब ये बात नहीं रही कि आपकी संतान है या नहीं है। ओके, ये बात अब नहीं रही कि आपका बेटा है या नहीं है। ओके, आप धर्मी है या नहीं है, इस पर आप खड़े हैं। ओके, अगर आप धर्मी हो चुके हैं तो आप धर्मियों के बीच में आप दिखाई देंगे। ओके, आप मरेंगे नहीं, आप बचाए गए हैं। ठीक है, उनका वंश यानी आप धर्मियों के बीच में है और ज़्यादा लोगों के बीच में जो परमेश्वर धर्मी बना कर ला रहा है और उसी को वंश कहा गया है, वही वंश कहा गया है। तो ये वंश बचाया गया हुआ वंश कौन सा है? आपकी पीढ़ियाँ नहीं है, आपके लड़के वाले नहीं हैं, ये धर्मी लोग हैं जिनको वंश कहा गया है। ओके, और केवल वही वंश जिलाया रहेगा, जीता रहेगा, बचाया गया है, बचाया जाता है। ठीक है, जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती वह थुथुन में सोने की नथ पहने हुए सुअर के समान है। विवेक नहीं रखती, बहुत ध्यान दीजिए, ये शब्द विवेक नहीं रखती, यानी उसके अंदर से मन कह रहा है ये गलत है मत करो, और फिर भी वो कर रही है, तो उस समय वो क्या होती है? सुअर के समान। ओके, यहाँ धर्मी और अधर्मी की बात नहीं की है, ये एक जनरल मनुष्य के कैरेक्टर को बताया है जो अपने विवेक को नहीं सुनता है कि मत कर ऐसा, ये गलत है, नहीं करना चाहिए। ओके, तो फिर वो सुअर के समान है। ओके, धर्मियों की लालसा तो केवल भलाई की होती है, परंतु दुष्टों की आशा का फल क्रोध ही होता है। ऐसे है जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी है जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। ध्यान दीजिए 24 वचन, ऐसे है जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी है जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है।
उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है, और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। देखो, अब यहाँ पर कोई धर्मी अधर्मी की बात नहीं की है, यहाँ पर एक अपना गुण बताया गया है। जो मनुष्य में अगर उदार गुण है तो उदार गुण उसको हष्ट पुष्ट बना देता है, और अगर वो दूसरों की खेती सींचता है, मतलब दूसरों की परेशानियों को हल कर देता है, दूसरों के जीवन को आसान कर रहा है, दूसरों का आनंद लेकर आ रहा है, उनका नुकसान नहीं होने देता है, उनके जीवन के बारे में वो हमेशा भली बातों से ही उनके सामने रहता है, तो फिर क्या हो जाएगा, उसकी भी सींची जाएगी। ओके, तो इस तरह से अगर भलाई करते रहेंगे जैसा कुर्नेलियुस कर रहा था, तो उसकी खेती सींची गई। कौन सा वंश बचाया जाएगा? सिर्फ धर्मियों का। उसको किस वंश में लेकर आया परमेश्वर? धर्मियों के वंश में। ओके, तो इस तरह परमेश्वर उसकी खेती को परमेश्वर ने सींचा, उसके लिए जो चाहिए था घराने के साथ उसको दे दिया। आमीन। जो अपना अनाज रख छोड़ता है उसको लोग शाप देते हैं, परंतु जो उसे बेच देता है उसको आशीर्वाद दिया जाता है। ये आपको जनरल एक इंसान के बारे में दिया है, किस प्रकार से आशीष आते हैं। ओके, जो अपना अनाज रख छोड़ता है उसको लोग शाप देते हैं, परंतु जो उसे बेच देता है उसको आशीर्वाद दिया जाता है। जो यत्न से भलाई करता है वह दूसरों की प्रसन्नता खोजता है, परंतु जो दूसरे की बुराई का खोजी होता है उसी पर बुराई आ पड़ती है। जो देखो, ये जनरल मनुष्य जाति का गुण, जिसके अंदर ऐसा गुण है तो वह क्या पाएगा? जो यत्न से भलाई करता है। ओके, जानबूझकर वो भलाई करता है, उसका गुण है वो, उसको बहुत मुश्किल नहीं है, उसकी आदत है भलाई करने की, तो फिर उसके लिए भी क्या हो जाएगा? वह दूसरों की प्रसन्नता को खोजता है। वो देखता है कि किस प्रकार से मैं इसको प्रसन्न रखूंगा, किस प्रकार से मैं इसकी सहायता में रहूंगा। वो भलाई करने वाला हमेशा उस दूसरे की भलाई के बारे में ध्यान रखता है, परंतु जो दूसरे की बुराई की खोज ही होता है उसी पर बुराइयां पड़ती है। इसके लिए हमको किसी की बुराई नहीं देखनी है। ओके, किसने क्या किया, किसने कैसे किया, किसने क्यों किया, ये हमको नहीं देखना है, नहीं तो वो जो हम देखेंगे उसमें से ही निकल के हम पर आता है। ठीक है, जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहलहाते हैं। देखा, धन काम नहीं करता है। धन पर भरोसा जो भी रखता है, सारी दुनिया के अंदर लोग यही देखते हैं हमारा धन खत्म नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो धन उनको संभाल नहीं पाता है। उनका गिरना वचन में लिख दिया है। ठीक है, जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहलहाते हैं। यानी गिरते समय, जो भी मुश्किलों से होकर जाते समय, टूटा फूटा, जो भी परेशान होने के समय कमज़ोर हो गए, सब कुछ बदल जाता है और फिर दोबारा नए ताकत, नए सिरे से, नए उमंग, नए जय जयकार की घोषणाएं करते हुए लोग, धर्मी लोग आपको प्राप्त होंगे। समझ में आया? परंतु धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहलहाते हैं। जो अपने घराने को दुख देता उसका भाग वायु ही होगा। कभी भी अपने घराने को दुख नहीं देना है। ओके, हमारे अपने घराने को दुख नहीं देना है। ये एक सरलता का, ये एक साधारण मनुष्य जाति के अंदर का गुण आपको दिख रहा है। घराने को दुख नहीं देना है, उसका भाग वायु ही होगा और मूढ़ बुद्धिमान का दास हो जाता है। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है। और देखो, धर्मी का प्रतिफल ओके क्या है? जीवन का वृक्ष। और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। कोई भी इंसान क्यों ना हो, दो जाति के, अगर वो धर्मी है तो उसका जीवन का वृक्ष प्रतिफल है। ओके, और एक कोई भी ऐसा इंसान जो मूढ़ नहीं है, जो मूर्खता नहीं करता है, बुद्धि से चलता है, उसका गुण है बुद्धि से चलना, तो उसका मन, लोगों के मन को वो मोह लेता है।
आमेन। दीवाना बना देता है वो लोगों को, लोगों के मन को। ओके, ऐसा बुद्धि से चलने वाला बुद्धिमान मनुष्य, ओके, बुद्धिमान से चलने वाला मूर्खता नहीं करता है, ओके, मुंह बंद रखता है, फालतू बकवादी नहीं है। ये सारे बुद्धिमानी मनुष्य की जाति, बुद्धिमान होने का एक अनुभव है लोगों। तो ऐसा इंसान लोगों के मन को मोह लेता है, लोगों के मन में छा जाता है वो। ओके, मैंने ये अनुभव किया है। बुद्धिमान मनुष्य हमेशा मेरा मन जीत लेते हैं। ओके, मेरा मन मोह लेते हैं। जो बुद्धिमानी को दिखाता है वो मेरे अंदर, मेरे मन के अंदर उसके लिए बहुत एक, क्या कहते हैं ना, मोह या क्या कहते हैं, बहुत ही अलग एक प्रकार का जगह उसको मिल जाता है। वेरी नाइस, वेरी प्लेजेंट जगह उसको मिल जाता है। ओके, क्योंकि मुझे वैसे मनुष्य मेरे मन को जीत लेते हैं। ठीक है, देख, धर्मी को पृथ्वी पर फल मिलेगा, तो निश्चय है कि दुष्ट और पापी को भी मिलेगा। देखा 31 वचन क्या कह रहा है, देख, धर्मी को पृथ्वी पर फल मिलेगा। इतना सब पढ़ा आपने 10 और 11 वचन में, धर्मियों के बारे में पढ़ा, सिर्फ मनुष्य जिसके गुण कैसे है वो पढ़ा। ओके, और फिर ये भी पढ़ा कि दुष्ट और पापी कैसे होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, धर्मी और दुष्ट का ही यहाँ पर हिसाब लगाया है। जो साधारण मनुष्यों के गुण है उसका हिसाब नहीं लगाया है। तो आप या तो धर्मी हो या फिर दुष्ट में हो। ठीक है, क्योंकि धर्मी वही है जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, उसके वचनों के आज्ञा पालन में, वचनों के दायरे के अंदर रह के अपना जीवन जीता है, वही धर्मी है। ओके, अगर उस दायरे के अंदर आप नहीं हो तो फिर आपकी गिनती किस में हो जाती है, दुष्ट और पापियों में हो जाती है। ठीक है, तो आपको भी प्रतिफल है। क्या लिखा है 31 वचन, देख, धर्मी को पृथ्वी पर फल मिलेगा, तो निश्चय है कि दुष्ट और पापी को भी मिलेगा। तो कहीं पर आप बचने का रास्ता ही नहीं है आपको। ओके, आप भी कुछ ना कुछ परमेश्वर से लेने वाले हैं। इसके लिए आप वो दुष्ट और पापी के कैटेगरी में से निकल जाओ और धर्मियों के कैटेगरी में आ जाओ। पानी में डुबकी लगाकर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लीजिए। ओके, और पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता अपने लिए ग्रहण करके उसके वचनों का पालन कीजिए। उसके वचनों की बाउंड्री में आपको जीना शुरुआत करना बेहद ज़रूरी है। आमीन। प्रभु यीशु आपको सहायता करे, अनुग्रह दे इस विषय में। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, 2 years बाइबल रीडिंग प्लान। ल्यूक 20 चैप्टर 19 वर्स से 26 वर्स, 1 सैमुएल 21 चैप्टर। लूका रचित सुसमाचार 20 अध्याय 19 से 26 वचन, पहले शमूएल की पुस्तक 21 अध्याय। 2 साल के बाइबल रीडिंग, 2 years बाइबल रीडिंग को हम अपने व्यक्तिगत समय में पढ़ना है। जब हम इसे पढ़ेंगे तो हम परमेश्वर के अनुग्रह के आत्मा के साथ पढ़ने जा रहे हैं। और अब आपने देखा नीति वचन क्या दिखाया आपको, या तो आप धर्मियों के दायरे में आ जाना है, नहीं तो फिर आप कौन सी दायरे में है, दुष्ट और पापियों के दायरे में है। भले ही कितना ही आपका गुण अच्छा क्यों ना हो, मनुष्य जाति के गुण आप में कितने भी अच्छे क्यों ना हो, काउंटिंग में नहीं लेने वाले हैं वो। परमेश्वर वो काउंटिंग में नहीं लेने वाला है। आपका काउंटिंग सिर्फ वही होगा, क्या आप धर्मी हो या दुष्ट और पापी में हो। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि ये वचन हमको कुछ सिखा रहा है, समझा रहा है। हम धर्मियों के अंदर आ चुके हैं तो हम उस वंश में है जो बचाया गया हुआ वंश है। ओके, और अगर हम दुष्ट और पापी के दायरे में है तो अब हमें समय है कि वचनों को ध्यान दें और अच्छे से अनुग्रह के आत्मा से हम सीखें और हम परमेश्वर के धर्मी हो जन में शामिल हो जाए। पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा लेकर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से ओके धर्मियों के वंश में शामिल हो जाओ।
और जब हम ये 2 साल के बाइबल रीडिंग को अकेले में पढ़ रहे होंगे तो हम देखेंगे कि परमेश्वर हमारे अंदर से इन वचनों के भेद खोलेगा, इन वचनों की गहरी बात हमें सिखाएगा, जो हमें धर्मी होने के कारण जहाँ जहाँ हमको जो जो बातों को जानने की ज़रूरत है वो हमको देने का वो रास्ता खोल के देता जाएगा। हम उसे लिए हुए चलते जाएंगे। आमीन। और जैसे ही हम ऐसा करते हुए 2 साल के अंत में देखेंगे परमेश्वर का वचन से चला हुआ रास्ता हम अपने अंदर अनुभव में लिए हैं, और ऐसा व्यक्ति परमेश्वर अपने कामों में इस्तेमाल करता है। और ऐसा ही व्यक्ति पाने के लिए परमेश्वर ने हमको एक ज़रिया दे दिया है कि हम ऐसे प्रकार के रीडिंग्स करते जाए, हम अपने अकेले में पढ़ते जाए। एक ज़रिया दिया है, कारण बना के दे दिया है। ज़रूरी नहीं है कि ये ही होना चाहिए, हमको इसको कारण बना के लेना है, ज़बरदस्ती लेना है। ओके, तो ये ऐसा है कि हमारे फ़ायदे के लिए, हमारे लाभ के लिए परमेश्वर ऐसे कारण हमको दे देता है। ठीक है। और जब अनुग्रह का आत्मा हमारे अंदर परमेश्वर ने दे दिया है तो हमको ये ऐसा होने का निश्चित लाभ उठाना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे हैं। अब फादर गॉड, धन्यवाद करते हैं तुझे। थैंक यू फादर। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, हम इन वचनों के अंदर से बहुत कुछ प्राप्त किए हैं। आबा फादर गॉड, हम जहाँ तक हो सके वहाँ तक अपने अंदर से जो इत्तर है खुदा परमेश्वर, उस बोतल में जो बहुमूल्य इत्तर तोड़ना था हम तोड़ चुके हैं खुदा। मेरे खुदा, इसका बहुमूल्य था और इसको तूने हम में रखना खुदा परमेश्वर, ये तेरा ही उद्देश्य था और हम उसको पिता उंडेल चुके हैं तेरे चरणों में खुदा। अब फादर गॉड, इसका फल हम निश्चित प्राप्त करेंगे और हम पिता परमेश्वर लोगों के जीवनों को पालन पोषण करते हुए तुझ में दृढ़ बनाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। हम विश्वास के साथ धन्यवाद करते हैं कि दुष्ट और पापियों ने जो भी ये वचनों को समझा है खुदा परमेश्वर, मेरे खुदा, अब वो धर्मी और दुष्ट और पापी के भेद पिता समझने लगे हैं और निश्चित पिता अनुग्रह का आत्मा उनके ऊपर छाया करता रहेगा जब तक कि वो पूर्ण रूप से पिता तुझ में तेरे बाउंड्रीज में वो लेकर आए नहीं, तब तक वो परमेश्वर उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। अब फादर गॉड, उनको हर समय हर हालत में ये वचनों के दायरे में लेकर आने वाला समय तो उनको तैयार करके दिया है और उसमें से तो उनको लेकर आया है। विश्वास के साथ हम तुझे धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फादर गॉड। धर्मियों को पिता तूने वंश, बचने वाला वंश ऐसा कहा है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं कि ये दुष्ट और पापी के कैटेगरी में रहने वाले अब पिता धर्मियों के वंश में ऐड कर दिए जा रहे हैं। थैंक यू फादर गॉड। नासरी यीशु के नाम से इनको आशीषित करते हैं हम। नासरी यीशु के नाम से इनके उन्नतियाँ हों, आत्मिक उन्नतियाँ हों और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महानता के कामों से इनके जीवनों में बहुत बहुत तायत से भरपूरी का आनंद रिलीज हो। यीशु नासरी के नाम से विनती करते हैं पिता, ये वचन कुछ भी खाली ना जाए और ये खनखनाते बर्तन बने ना रहे, इसकी सामर्थ्य हमारे अंदर उंडेल दे खुदा परमेश्वर। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन।